أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز طلباء و سامعین محترم، آج ہمارا ائمہ اربعہ کے اصول استنباط ہیں، اور پہلے میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اس لیکچر میں مختصر سا ائمہ کرام کا تعارف بھی کروا دوں، لیکن وہ پھر ممکن نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آخر میں بالکل مختصر سا تعارف کروا دوں، لیکن یہ جو ایک تفصیلی تعارف ہے وہ آپ پھر پڑھ لیجئے گا، اور ویسے بھی میرے خیال جس کلاس میں آپ موجود ہیں اس میں ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ منہج استنباط یا اصول استنباط یا اصول اجتہاد علم اصول فقہ کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور منہج سے مراد یا مطلب ہوتا ہے واضح رستہ، جبکہ استنباط کا معنی ہوتا ہے سمجھ بوجھ کر، الاستخراج بفہم و اجتہاد، سمجھ بوجھ اور کوشش کر کے کسی چیز کو نکالنے کو استنباط کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریفات بہت زیادہ موجود ہیں، میں نے ایک آدھی درج بھی کر دی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا پہلے تعارف درج کیا ہے، ان کے بارے میں جو ان کے اکابرین کے اقوال ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اساتذہ کو، جس میں امام حماد بن ابو سلیمان ہے، امام ابراہیم ہیں، امام علقمہ ہیں، عبداللہ بن مسعود، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک آپ کا سلسلہ جاتا ہے۔ یعنی کہ امام حماد جو ہیں وہ ان کے استاد ابراہیم، یہ ان کے شاگرد ہیں، اور ابراہیم شاگرد ہیں علقمہ کے، اور علقمہ ہیں، یہ پوری سند میں نے اس میں بیان کر دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔ تو یہ جو ہے سلسلہ جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، یہ تقریباً 4 واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ اسی میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر جو دوسرے اعتراضات ہیں، جس طرح وہ حدیث کو کم لیتے تھے، اس کو بھی میں نے بیان کر دیا، اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی آپ تفصیل سے نوٹس میں پڑھ سکتے ہیں۔ فقہ حنفی کے جو اصول استنباط ہیں وہ 7 اصول استنباط ہیں، یا اصول اجتہاد کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے امام کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسئلے کو قرآن پاک کی روح سے ہم جو ہے وہ اخذ کریں۔ میں نے اس سے پہلے جو پچھلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان کے اندر 4 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہر طرح سے ملے گی۔ ایک ہے کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً سب میں مشترک ہیں، ایک آدمی اس کی صورت تبدیل ہے لیکن ہے وہی چیز۔ اسی طرح امام اعظم و حنیفہ بھی قول صحابہ کو لیتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صرف فقی فقہا کو یہ حق حاصل ہے، ہر صحابی کی رائے آپ نہیں لیتے۔ اس کے بعد اجماع آپ کرتے ہیں، قیاس سے آپ استنباط کرتے ہیں۔ استحسان آپ نے یہ اصطلاح سب سے پہلے استعمال کی تھی، اور اس میں صرف امام مالک کا اختلاف ہے، اور باقی تقریباً تمام جو ہے وہ مانتے ہیں، یا امام شافعی کا، یہ آگے چل کے ہم پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کا آخری اصول ہے وہ ہے عرف و عادت، یعنی کہ مسائل کے اخذ میں آپ عرف و عادت کو بھی دیکھتے ہیں، کلچر کو بھی دیکھتے ہیں، ادھر کی نارمز اور ویلیوز کو بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاں اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے یہ ایک دفعہ کنٹمپریری ایشوز کے اندر جو ہم نے لیکچر دیا تھا اس میں یہ بات کی تھی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے تو خیر ہے لیکن وہی کسی دوسرے معاشرے میں شر ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھا جائے گا کہ جس چیز کا حکم صادر کیا جا رہا ہے
उस चीज़ का राइज उस माशरे में किस चीज़ के लिए हो रहा है। किसी अच्छे माने में हो रहा है तो जाहिर बात है उसकी फिर हुक्म दिया जाएगा। अगर किसी बुरे माने में दिया जा रहा है तो उससे हम मना करेंगे। फिका हनफी के बाद ये इसकी मैंने पूरी मुकम्मल वजाहत जिसमें ये इस्तेहसान है इस पे तमाम जो है वो आइमा कराम का नुक्ता नज़र जो है इस्तेहसान के ऊपर जिसको हज़रत इमाम आदम हनीफा ने लिया है उसके ऊपर क्या है ये भी मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया है। इसी तरह इमाम आदम हनीफा के ऊपर जो हदीस कम नकल करने का एतराज़ था वो भी मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया है। दूसरा आपकी जो फ़िक्र है वो ज़्यादा क्यों इतनी मशहूर हुई है उसकी तीन वजूहात मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। एक इबादत मामलात और अखलाकियात, इसके ऊपर इमाम का बड़ा काम है, अगरचे सबका ही काम है लेकिन इमाम का सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम है। और इमाम की और भी बड़ी खसूसियात हैं, सिर्फ ये नहीं है। उसके बाद मज़हब हनफी की उम्महातुल किताब जो हैं कुतुब वो मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी हैं। उसके बाद उनकी दूसरे दर्जे के ऊपर जो कुतब आती हैं वो भी नहीं मैंने यहाँ पे दर्ज कर दी हैं। और इसमें जो दूसरे आइमा कराम से हैं और जो आज तक चलती आ रही हैं फतावा वगैरह वो सारे मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी हैं। इसके बाद आ जाते हैं इमाम मालिक। आपकी विलादत जो है वो 93 हिजरी में है और आपकी वफात 179 हिजरी में है। इनका भी आपने तारुफ वगैरह पढ़ लिया होगा। ये इनकी तसनीफ़ अलमोता वगैरह इनकी कुतब हैं। उसके बाद इमाम मालिक के तलामिज़ा हैं, इमाम मालिक के असाज़ा हैं और दीगर चीज़ें मैंने यहाँ पर इनके दर्ज कर दी हैं। इमाम मालिक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपके उसूल इस्तिंबात में तकरीबन 11 उसूल बनते हैं। सबसे पहले आप किताबुल्लाह से इस्तिंबात करते हैं, उसके बाद सुन्नत रसूल, इजमा सहाबा के ऊपर भी आप आते हैं। और चूंकि आप ज़्यादातर आपने अरसा जो है वो मदीना में गुजारा है तो आप तामल सहाबा से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, यानी कि आप अहले मदीना का तामल अहले मदीना के अमल पे बहुत ज़्यादा आप इन्हसार करते हैं। और वो इस वजह से भी करते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर आप रहे हैं तो दीन की प्रैक्टिस वहाँ पर ज़्यादा हुई है। और सहाबा इकराम की बड़ी जमात अंसार की मुहाजिरीन की मदीने में ही रही है तो वो अहले मदीना के अमल को ज़्यादा करीब समझते हैं कौले सहाबा या क़ियास से। तो वो तरजीह देते हैं सहाबा के या सॉरी मदीना अहले मदीना के अमल को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उसके बाद अगर मसला फिर वाज़ेह नहीं होता तो वो फिर कौले सहाबा की तरफ जाते हैं क़ियास और मसलत मुरसला। उसके बाद उर्फ़ आदत के बाद सद्दो ज़राए बड़ी एक ज़बरदस्त टर्म है। ये तमाम जो इस्तिलाहात ये यहाँ पर लिखी हुई हैं इनका भी एक लेक्चर होगा बाकायदा, उसमें हर एक चीज़ को मैं तफसीलन डिस्कस करूँगा। यहाँ पर सिर्फ उसूल बताना मकसूद है, यहाँ पर इन इस्तिलाहात को वाज़ेह करना मकसूद नहीं है। इस्तेहसाब और इस्तेहसान ये इमाम के नज़दीक तकरीबन ये 11 टर्म बनती हैं जिनसे वो उसूल लेते हैं। और ये भी याद रखिएगा ये जो उसूल होते हैं ये कोई फुकहा ने दर्ज नहीं किए हुए किसी कुतुब में, मतलब ऐसा नहीं है आपको ये तरतीब के साथ कहीं दर्ज हुए मिलेंगे। बल्कि हम देखते हैं कि जब कभी इमाम किसी भी मसले के अंदर इस्तेमाल कर रहा होता है, कभी भी किसी मसले के अंदर जब वो किसी मसले को अखज़ कर रहा होता है तो उसके अंदर वो ख़ास कुछ तरीक़ेकार इस्तेमाल करता है। उन तरीक़ेकार से पता लगता है कि जो इन्होंने इस दफ़ा जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है वो ये तो बनता है लेकिन ये दूसरा नहीं बनता। अब ये सुन्नत रसूल में देखें बल्कि ये नस में देखें ज़रा। अभी किताबुल्लाह में भी आगे बड़ी चार चार पांच पांच इकसाम बनाते हैं, सुन्नत में भी ये मैंने इसको बड़ी डिटेल से यहाँ पर बयान कर दी है, आप इसको बाद में नोट्स को पढ़ सकते हैं। ये इनकी उम्महातुल कुतुब हैं जो इनकी बड़ी बड़ी कुतुब हैं अल-मुअत्ता वगैरह। उसके बाद ये दूसरी जो इनकी कुतुब अरबा कहलाती हैं मालकी फिक़्ह की, यहाँ पर मैंने ये दर्ज कर दी हैं। उसके बाद आते हैं इमाम शाफी जो है वो 150 हिजरी में पैदा होते हैं और 204 हिजरी में आपकी वफात होती है। और आप बाकायदा इमाम मालिक से फ़िक़्ह पढ़ी और आपने मोता का समा भी किया। इसी तरह इमाम की जो है वो अर्रिसाला है जो उसूल फ़िक़्ह के मौजू पर आपने किताब लिखी थी, इसकी भी तफसील यहाँ पर आपके तलामिज़ा, आपके असाज़ा और आपकी जो सनद है वो मैंने यहाँ पे दर्ज कर दी है। इमाम के नज़दीक जो है वो टोटल 4 उसूल है। मसलत मुरसला भी जो है वो जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो भी कहते हैं या तो उसका लिंक कहीं ना कहीं कियास में मौजूद होगा या फिर इजमा में कहीं ना कहीं मौजूद होगा, डायरेक्ट वो मसलत मुरसला पे नहीं जाते। तो आपके पास किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूल, इजमा और कियास, और आप बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं। बल्कि आप तामल अहले मक्का के हवाले से कुछ जो आपके अकाबिरीन शागिर्द हैं उनसे हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप तामल अहले मक्का को भी फोकस करते थे, यानी कि अहले मक्का के जो है ना वो उन चीज़ों को भी देखते थे।
बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर इमाम ने काफ़ी तराजात किए हैं, ये जो अब आप तफसील से पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। इमाम शाफी की उम्महातुल कुतुब ये हैं जिसमें अल-आलाम वगैरह मशहूर तीन कुतुब हैं, और बाकी इनके असाजा, इनके शागिर्द वो भी मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो आपका ये तारुफ मुख्तसर का बता देता हूँ, 241 हिजरी में आपकी जो है वो वफात होती है और 164 हिजरी में आपकी पैदाइश होती है। और बसरा, कूफा, यमन, शाम वगैरह में आपने अपना इल्मी जो है वो डंका जो है वो मनवाया। यहाँ पर भी इनके शागिर्द, इनके असाजा, इनकी उम्महातुल कुतुब वो सारी मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी हैं। फ़िक़्ह हम्बली के अंदर दो चार इस्तिलाहात समझने वाली हैं ज़रा, ये थोड़ी टर्मिनोलॉजीज़ को डिफरेंट करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल सबसे पहले जो है वो किताबुल्लाह की टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं नसूस की। अच्छा, नसूस की टर्मिनोलॉजी में वो दोनों चीज़ों को लेकर आते हैं, किताबुल्लाह को भी ले आते हैं और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लाते हैं। उसके बाद आप सहाबा के फतावा की तरफ तवज्जो करते हैं। हदीस मुरसल ये एक बड़ा जबरदस्त एक जरिया है। हदीस मुरसल और प्लस ज़ईफ भी कभी कभी आप जो है वो ले लेते हैं। वो कहते हैं भी मसला ये है कि हदीस मुरसल हो या ज़ईफ हो, फिर भी अगर आप इज्तिहाद करते हैं तो आपके इज्तिहाद से तो हदीस कभी है ना। और हदीस मुरसल और जो ज़ईफ है उसमें हम ये देखते हैं कि हदीस में बजाते खुद तो कोई मसला नहीं है, हाँ रावी में ज़ौक़ पाया जाता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हदीस के अंदर कोई मसाला नहीं है। तो वो कहते हैं फिर भी हमारी राय से बेहतर हदीस है अगर आप वहां पर वो नकल कर दें। उसके बाद आप कयास करते हैं, इजमा है, ये आपके उसूल हैं। इसके बाद ये मैंने फिर इनकी इसी तरह आप देख सकते हैं तफसील है, ये इनकी उम्महातुल कुतुब हैं, इनके असाज़ हैं, इनके शागिर्द हैं। अब आखिर में हम जो है वो देखते हैं फ़िक़्ह जाफरी के उसूल इस्तिंबात के हैं। ये बड़े मज़ेदार हैं। मुझे वैसे फ़िक़्ह हनफी तो अगरचे मेरी प्रैक्टिस जो है वो फ़िक़्ह हनफी की है, लेकिन फ़िक़्ह जाफरी के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं और वो मुझे अच्छी भी लगती हैं। जिस तरह के ये अक्ल है, ये इनका एक सोर्स आपको बड़ा अलग नज़र आएगा। बल्कि इनके अंदर मैं आपको बताऊं कि आप अगर इनके मदारिस में जाते हैं तो जिसमें हमारा दरस निज़ामी का 8 साल कोर्स होता है, तो इनका वो 40 साल कोर्स होता है और उस 40 साल कोर्स में 8-8 साल के 5 स्पेल होते हैं। ठीक है। और उसके अंदर आप देखें कि ये अहले तशरीह उलमा इसलिए भी ज़्यादा कवी होते हैं अक़लन के मंतकी लिहाज से कि ये जो उसमें 35 साल होते हैं वो तकरीबन सारे के सारे अकल के ऊपर, मंतिक, बलागत, असूल, इन चीजों के ऊपर लगाते हैं, जबकि 5 साल सिर्फ जो है वो इनके ऊपर नसूस के ऊपर लगाते हैं। अच्छा, ये जो आपने देखा होगा कि पीछे जितने भी हमने टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं उसमें हमने लफ्ज किताबुल्लाह लिखा है, यहाँ पर ये कुरान मजीद लिखते हैं। अच्छा, किताबुल्लाह और कुरान मजीद में क्या फ़र्क है, ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे जो उलमा ख़ास तौर पर फुक़हा हैं वो किताबुल्लाह से मरा सिर्फ कुरान पाक नहीं लेते, बल्कि उसमें साबका शरिया भी आ जाती हैं। साबका शरीयत में से भी, यानी कि आप तौरात में से कह सकते हैं, ज़बूर में से कह सकते हैं, इंजील में से कह सकते हैं, बाकी कुतुब को भी वो इसी में किताबुल्लाह में शामिल करते हैं। जबकि फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं एक तो मसला वो है जो कुरान पाक से वाज़ेह हो रहा है, और एक वो बातिनन तफसीर है जो महज अहले बैत से ही सादिर है। तो इनके यहाँ कुरान पाक के भी आगे दो उसूल बनते हैं, एक ज़ाहिरन बनता है और एक बातिनन, और बातिन में आइम्मा अहले बैत को वो लेते हैं। इसी तरह सुन्नत रसूल की भी वो तकसीम दो तरीके से करते हैं, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और एक मासूमीन की हदीस है। इनके यहाँ जो मासूमीन की हदीस है वो भी इसी तरह कभी है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। बल्कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर जो मासूमीन हैं वो ये कहते हैं कि इनको भी उसी तरह ही हिमायत हासिल है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी। या आप ये कह सकते हैं कि वो मासूमीन जो आइम्मा किराम हैं, ख़ास तौर पर इमाम अली हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, ये आइम्मा किराम जो हैं इनकी बात, कौल, फ़ेल, तकरीर को वही हैसियत हासिल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल को हासिल है। तो वो सबसे पहले, अगरचे उसमें इतनी तो तफरीक करते हैं कि ये रसूलुल्लाह की हदीस है और उसके बाद फिर मासूमीन की हदीस है, दर्जा तो है, लेकिन उससे मेरा कहने का मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि वो रसूलुल्लाह के सामने ला के खड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपकी कौल फ़ेल हदीस पहले है और फिर मासूमीन की है। मेरा कहने का मुराद ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ मासूमीन की रवायत नहीं ली जाती या ली जाती है तो वो फ़िक़्ह में इतनी हालांकि जामे इमाम जाफ़र सादिक जो हैं
ये इमाम अबू हनीफा के भी उस्ताद हैं, ये तमाम अइम्मा के उस्ताद हैं, और ये सबसे बड़े उस्ताद हैं। और इनके फिक्र के हवाले से तो इमाम इमाम अबू हनीफा का ये कौल बड़ा मशहूर था। ये मैं उनकी सीरत की किताब में पढ़ रहा था। आपने फरमाया कि मैंने 2 साल या तकरीबन कुछ अर्सा इमाम जाफर से कुछ जो है वो तलम्मुस किया। तो वो कहते अगर मेरी जिंदगी में वो 2 साल ना होते तो मैं बर्बाद हो जाता। इमाम अबू हनीफा इतना मानते थे, और बल्कि एक दो दफा तो आपने टेस्ट भी दिया, भाई इमाम जाफर ने बुला लिया था आपको भी, हमने सुना तो ज्यादती कर रहा है कुछ चीजों में, मसलों में। तो इमाम जाफर ने बुला लिया था इमाम अबू हनीफा को। तो इमाम जाफर सादिक, या ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रसूलुल्लाह का खून आ रहा है ना, तो इसका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। बल्कि अगर कोई अहमक ही होगा जो इनके मुकाबले में किसी बात को भी लेकर आएगा। तो फिक्र जाफरी की तो मैं इस हवाले से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि इन्होंने मासूमीन के कौल को महफूज कर लिया है। बल्कि इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। हमारे यहाँ मासूमीन का या आइमा अहले बैत के अकवाल इस तरह महफूज नहीं है जिस तरह अल्लाह ताला ने इनको ये शर्फ बख्शा है, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आखिर में वो इजमा लेते हैं, और इजमा में भी वो इमाम की तायीद लाजिम समझते हैं। और आखिर का जो सोर्स है वो अकल को बाकायदा एक सोर्स, जिसमें कुरान है, सुन्नत है, इजमा है, और फिर अकल को बाकायदा एक सोर्स के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं। ये फिका जाफरी के असूल थे। अब इनका मैं बिल्कुल मुख्तसर से तारुफ करवा दूं तो ये फ़िक़्ह हनफी है। फ़िक़्ह हनफी के जो बानी हैं वो इमाम अबू हनीफा हैं। आप 80 हिजरी को कूफा में पैदा हुए, बगदाद में 150 हिजरी में आप फौत हो गए हैं। ये इनके असाज़े आपके तकरीबन 11 असूल बनते हैं, जिसमें किताबुल्लाह है, सुन्नत है, इजमा है, क़ियास है, इस्तिहसान है, अक़वाल सहाबा, उर्फ़ वाक़िअत, मसाइल मुरसला, सद्दु ज़राए, इस्तिहसाब हाल और शराय मिन क़ब्लुना। ये उन्हीं जो मैंने अभी उसूल बयान की उनको खोल के थोड़ा सा बयान यहाँ पे कर दिया गया है। इसी तरह फिक मालकी है। मालकी में 93 हिजरी में इमाम पैदा होते हैं, 179 में आपकी डेथ होती है। आपके तकरीबन 12 या 11 उसूल बनते हैं, जिसमें किताब है, किताबुल्लाह है, सुन्नत है, इजमा है, क्यास है, तामुल अहले मदीना है, यानी कि अहले मदीना का अमल है, कौल सहाबा है, इस्तिहसान, सद्दुज़राए और मरातुल खिलाफ। ये वो यूज नहीं करते, वैसे इन्होंने लिखा हुआ है। इस्तिसाबी हाल है, मसाले मुरसला और शरा मिन क़ब्लुना है। और इसी तरह वो आपकी उम्मातुल कुतुब हैं। शवाफे के जो हैं वो तकरीबन 150 हिजरी में आप पैदा होते हैं, और 24 हिजरी में आपकी वफात होती है। और आपके यहाँ 4 ही उसूल हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा और क़ियास। और मसलत मुरसला भी मैंने आपको बताया था, वो भी मानते हैं अगर इन दोनों में कोई दलील मौजूद है, असर मौजूद है, तो उसको मानेंगे, अदरवाइज वो नहीं मानेंगे। इसी तरह फिर आखिर में हम देखते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल के आपके 8 असूल हैं। किताबुल्लाह है, सुन्नत है, फतावा सहाबा है, इजमा है, क़ियास हाल है, मसाले मुरसला और सद्दुल ज़राए है। ये आपकी उम्महातुल कुतुब हैं जो मैंने नीचे दर्ज कर दी हैं। ये मुख्तसर तरीन सा तारुफ था, और मैंने आज कोशिश की है कि लेक्चर को इंतहाई मुख्तसर रखूँ, क्योंकि आज महज उसूल इस्तिंबात बयान करना है। इनमें से हर एक किस्म की, जिसमें इस्तेहसाब है, इस्तेहसान है, इनको मैं बाकायदा एक पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और वो इंशाल्लाह ताला जो दीन के अंदर हमारी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उनके ज़िमन में मैं इंशाल्लाह यहाँ पर दर्ज करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।